अमृतसर में आज बेटे द्वारा पीटे जाने की शिकायत को लेकर अमृतसर के कोर्ट परिसर में पहुंचे बुजुर्ग दंपत्ति दी अधिकारियों को शिकायत। जानकारी के मुताबिक अमृतसर के वेरका इलाके के रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति अमृतसर कोर्ट परिसर में वकील रमन चौधरी के पास पहुंचे। उन्होंने रमन चौधरी के जरिए प्रशासन को अपनी व्यथा सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि वह पिछले कई दिनों से अपने बेटे की मार झेल रहे हैं। अब हम पूरी तरह तंग हो चुके हैं। उनका बेटा टिंकू उन्हें डंडों से पीटता है, वह मारता है। इसकी शिकायत लेकर वह आज डीसी व पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। पत्रकार लक्की मेहरा की विशेष रिपोर्ट। कित्थों दे रहने वाले जी? वेरका नवी वादी। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਟਿੰਕੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਝਗੜਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ? ਝਗੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ। ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ? ਹਾਂ ਹੁਣ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦਾ ਸਰ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਚਲੋ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਦੋ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ? ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੋ ਹੀ ਆ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ? ਦੋ ਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਆ? ਵਿਆਹੇ ਦੋਵੇਂ। ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੁਆਰ ਉਹ ਦਵਾਉਂਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਆਈ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਰਕੇ ਚੌਂਕੀ? ਵੇਰਕੇ ਚੌਂਕੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ? ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ 5-4 ਵਾਰ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ। 5-4 ਵਾਰ ਹੀ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕੁੱਟ ਲਿਆ? ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਟੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਟੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਭਈ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਬੁੱਢਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੱਗਦੇ ਉਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਢੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਈ ਨਿਆਣਚਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋਪੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ MLA ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੰਗ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ नहीं खाने दिंदा है। एडवोकेट है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमृतसर में एज ए लॉयर प्रैक्टिस करती हूँ और 8 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। मैम, एक मामला आपके पास आया है, बुजुर्ग हैं। हाँ जी। वेरका का क्या है मामला पूरा और किस तरह से आप इसको हैंडल कर रहे हैं? जी, ये जो मामला है ये 70 इयर्स ओल्ड एज पर्सन है, मेरे पास आए, वाइफ एंड हस्बैंड है। और इनके जो 3 बच्चे हैं, एक सबसे बड़ी बेटी है उसकी शादी हो रखी है, उसके बाद 2 बेटे हैं उनकी भी शादी हो रखी है और उनके 2 आगे बच्चे भी हैं। और जो सबसे छोटा बेटा है इनका जगदीश,
वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और उसकी वाइफ जो किरना है वो इनकी मार पिटाई भी करते हैं। और ये मसला मेरे पास आया था केस, कल शाम को मेरे घर पे आए थे, तो इन्होंने जब आके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है इनकी जो डॉटर इन लॉ है वो इनको स्टिक के साथ मारती है, वुडन स्टिक जो होती है ना उससे इनको मारती है। और इन्होंने एकदम से वो जो कुर्ता था उतार के दिखाया, मेरे पेरेंट्स भी सामने थे, तो एट दैट मोमेंट बड़ा इमोशनली सा वो चीज़ हो गई थी कि यार एक ह्यूमैनिटी के नाते हम लोग एक बुज़ुर्ग, एक सीनियर सिटीजन हैं, उनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। और एक डॉटर इन लॉ एज ए डॉटर ही होती है, और उसको तो आई डोंट थिंक सो कि हाथ उठाना चाहिए। और इतने साल हो गए मैरिज को, उनके भी आगे बच्चे हैं, ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से इनके 10-15 साल हो गए हैं इनकी शादी को। तो ये जो जैसे इनका 2016 से इनका डिस्प्यूट शुरू हो गया था, और ये बुज़ुर्ग जी 2016 से कभी इनको कोई राय देता है कि बेदखल कर दो बेटे को, इन्होंने बेदखल कर दिया। कभी कोई कहता है, जैसे कोई इंसिडेंट घर में होता है ये उसको लेके निकल पड़ते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं बापू अपनी जान बचा, तो नहीं तो तेरी बहू ने तेरा नुकसान करेगी जाने वाली, तू जा घर पे, बिकॉज कि फाइनेंशियली भी ये सिक्योर नहीं है। अब 70 साल से प्लस ये जोड़ा है, अब 70 साल की उम्र में बंदा कमाएगा क्या और खाएगा क्या? ये टाइम तो होता है कि बुज़ुर्गों का ध्यान रखना, बुज़ुर्गों का टेक केयर करना, और इस टाइम में बुज़ुर्गों को मारना, उनका टेक केयर, दवा दारू रोटी पानी करने की बजाय इनको मार पिटाई करके, इनको डराना धमकाना और उल्टा कहना कि मैं आप लोगों के ऊपर झूठे केस डाल दूंगी, कभी कपड़े फाड़ लेने अपने, मैं ये कर दूंगी, और झूठी दरखास्त देने की धमकियां देनी, या किसी चीज़ में इन्वॉल्व करने की इनको धमकियां दी जाती है। अब ये जो मैटर मेरे पास आया तो मुझे बड़ा, जब इन्होंने सारी स्टोरी सुनाई मुझे, तो मैंने काफ़ी इसकी तह तक गई हूँ। और एक इन्होंने पहले ही एडीसी होते थे यहाँ पे श्रीमान हिमांशु अग्रवाल जी, उनके पास भी इनका केस चला है, तो वहाँ पे भी मैंने देखा वो जो एप्लीकेशन है इनकी डिसमिस हो चुकी है ड्यू टू, आई डोंट थिंक सो कि मुझे उसकी तह तक अभी जाना है, मैं देख रही हूँ कि क्यों डिसमिस हुई है। अभी उसका ऑर्डर निकालना है। जो अल्टरनेटिव था जो मैंने देखा है ऑर्डर को, उसमें यही दिया गया है कि इनकी जो प्रीवियस 2020 की एप्लीकेशन थी वो डिसमिस हो चुकी है, और जो काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो मतलब कि 2016 के बाद जितना इनका डिस्प्यूट है या उससे पहले का डिस्प्यूट है, पुलिस स्टेशन लगा लो, कोई पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ा, कोई कमिश्नर ऑफिस नहीं छोड़ा इन लोगों ने कि हमारी जान माल की रक्षा की जाए, लेकिन किसी ने भी इनको सीरियसली लिया ही नहीं है। अब ये मेरे जैसे ही मेरे घर आए हैं तो इन्होंने मतलब मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि बुज़ुर्ग आदमी जब हमारे पैरों में हाथ लगाता है तो ये शर्म की बात है हमारे लिए कि सोसाइटी किस साइड जा रही है। तो सोसाइटी में ये जहाँ पे भी जितने भी लोग गली मोहल्ले के हैं, मेरी उनसे अपील है कि नहीं, जहाँ पे भी किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा अत्याचार होता है उसके साथ उसकी मदद कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाइए, कहीं पे भी नहीं पुलिस सुनवाई करती कमिश्नर के पास जाइए, लेकिन उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि उनको ऐसे बहू बेटियों के बीच में अकेला छोड़ दो। और बहू बेटियों को भी चाहिए एज ए बेटी बन के रहें, ना कि एज ए सोचें कि ये बुजुर्ग हैं तो इनको मार दूंगी, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि मारने से कोई मसला हल नहीं होता। अगर ये उनकी टेक केयर करती, किरना जो इनकी डॉटर इन लॉ है, मेरे ख्याल से अगर इनकी टेक केयर करती, बुजुर्गों को क्या चाहिए, ठीक है? क्यों बुजुर्ग कहता है कि मेरे बच्चे मेरे घर में ना रहे, मुझे बचाया जाए? कभी कोई बाप जब इतनी हद हो जाती है तभी बोलते हैं, अदरवाइज मेरे नहीं ख्याल से कि छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, और छोटी मोटी बातों को लेके इतना बड़ा इशू भी नहीं बनता। बट अब ये सीरियस इशू आ गया, जैसे वुडन स्टिक से इनको मारा गया, तो इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खली है ये चीज़। उन्होंने कहा कि बेटा तू स्टैंड लेगी, तो मैंने कहा डेफिनेटली पापा मैं ये चीज़ करूँगी। तो ये चीज़ है। अभी मैंने जो एप्लीकेशन इनकी टाइप करवाई है उसमें जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंडर इनकी एप्लीकेशन करी हुई है, जिसमें अंडर सेक्शन 25 के अंडर जो हमारे डीसी साहब है वो इसके ऊपर डेफिनेटली कॉग्निजेंस लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मसला सीरियस है। इसमें एक बुजुर्ग नहीं, पता नहीं नंबर ऑफ बुजुर्ग कहाँ पे ये इंसिडेंट से पीड़ित हो रहे हैं। कुछ आवाज़ उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते, कुछ वृद्ध आश्रम छोड़ दिए जाते हैं। सो इसके ऊपर टेक केयर करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इनके ध्यान देने से ही काफ़ी मसले हल हो जाएंगे।
सो मेरा तो बिल्कुल मानना है कि जैसे ये एप्लीकेशन जाएगी, और मुझे उम्मीद भी है कि अपने डीसी साहब जो अमृतसर में हैं मौजूदा, वो इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेंगे और डेफिनेटली एफआईआर लॉन्च होगी जो इनकी डॉटर इन लॉ है और उनका जो बेटा है उसके खिलाफ। और मैं अपील करती हूँ कि इनकी जल्दी से जल्दी जो भी इनको जस्टिस दिया जाए और एफआईआर लॉन्च करें। बाकी जितने भी बुज़ुर्ग हैं सोसाइटी में, यही मैसेज मैं देना चाहूँगी इन बुज़ुर्गों के थ्रू से कि जहाँ पे भी सोसाइटी में कहीं पे भी हो रहा है, यूथ तो अभी इतना अवेयर हो चुका है, तो यूथ को अवेयर और होने की ज़रूरत है। घरों में भी बच्चे हैं, ये अब स्टेप उठाइए। जैसे आपको पेरेंट्स पालता है, कहीं पर भी ऐसी हरकत देखते हो आप, उसी टाइम आप संभाल लो तो इतने बड़े मुद्दे उठे ही ना, वहीं पर ख़त्म हो जाए। सो सोसाइटी का भी इसमें थोड़ा सा योगदान चाहिए, सोसाइटी को भी चाहिए कि नहीं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए। थैंक यू सो मच।